یہ بات ہے قرآن کی، یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بس جھوٹی شاعری ہے۔ یہ بات ہے اس آگ کی جو لگائے گی ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے۔ محمد کے درد سے مجھے سکون ملتا ہے۔ غلاموں، یہ کانٹے اس کے گھر کے سامنے بچھا دو۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھارے بازار میں رسوا کیا۔ مکہ والو، اس کی بات مت سننا، یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور یہ دیوانہ ہے، دیوانہ۔ وہ دیکھو پاگل آدمی۔ یہ بات ہے سورہ لہب کی۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ کیا ہے سورہ لہب؟ سنا ابو منال، اللہ نے ابو لہب کا نام لے کر سورہ نازل کی ہے۔ کون تھی زمین جس کے ذکر اللہ نے اس صورت میں کیا ہے؟ ابیہ باجی، سنا آپ نے؟ کون سی بات؟ جمیل کا ہار اس کے گلے کی رسی بنے گا آخرت میں۔ اور ایسا کیا کر دیا ان دونوں میاں بیوی نے کہ اللہ نے قرآن میں ابو لہب کا نام لیا؟ اس کا اللہ ہمیں آگ کا عذاب دے گا۔ کہتا ہے میں لکڑیاں اٹھاؤں گی اپنے سر پر۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، کیسے یہ صورت لیونگ پروف ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورہ لہب مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی، اللہ کی نبی کو پریشان کرتا، ان کو گالیاں دیتا، بھاری بازار میں رسوا کرتا۔ میرے بھتیجے نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، کہتا ہے اس ایک خدا کو مانو۔ اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ تعجب ہے۔ مگر اس سب کی شروعات اس صبح ہوئی جب صبح کی روشنی مکہ کی زمین چوم رہی تھی۔ اونٹ ریتیلی میدان میں دوڑ پڑے تھے، کوئی خود کو صبح شیشے میں دیکھ رہا تھا، کوئی ناشتہ کر رہا تھا تو کوئی بستر پر انگریاں لے رہا تھا۔ یہاں ہاتھ جیتے جا رہے ہیں اور انہیں دن بھر بستر توڑنا ہے، اور کام ہی کیا ہے؟ اے جی، اب سوتے ہی رہو گے کیا؟ لیکن کوئی تھا جو صفا کے پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ وہ پہاڑ پر کون ہے؟ محمد۔ یہ وہ پہاڑ تھا جس پر مکہ والے ایک دوسرے کو اکٹھا کرتے، کوئی خاص بات بتاتے۔ صفا کی پہاڑ پر چڑھ کے اللہ کے نبی نے ایک گہری سانس لی اور پھر زور سے پکارا، یا صباحا۔ یہ اذان نہیں تھی، نہ کوئی سوداگر کی صدا، یہ خطرے کی پکار تھی۔ اس کا مطلب، اے لوگو میری بات سنو، تم پر خطرہ آنے والے ہیں۔ لگتا ہے کوئی مصیبت آئی۔ لوگ اپنے گھروں سے، اپنے دکان سے، اپنے باتوں سے نکل پڑی، اور پھر جب لوگ صفا کے پہاڑ پر نیچے جمع ہو گئے تو پھر اللہ کے نبی نے ان سب کو ایک نظر دیکھا اور پھر ان سب سے ایک سوال پوچھا کہ یہ لوگوں، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے، کیا تم میرا یقین کرو گے؟ لوگ چلا اٹھے، ہاں بالکل کریں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صدیق ہیں، آپ محمد ہیں۔ ان سب لوگوں کے جواب سن کر اللہ کے نبی ایک لمحہ کے لیے رکے اور پھر انہوں نے ان سب سے کہا کہ یہ لوگوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس آنے والے عذاب سے جو بڑا سخت ہے، اور عبادت کرو صرف اس کی جو کائنات کا مالک ہے۔ یہ بات سن کر اچانک وہاں کا ہوا بدل گئی، ان کے چہرے پر چیخ اور سناٹا چھا گیا، وہ سب ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تعجب ہے۔ یہ بات تو کیا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ اپنے خداؤں کو اور ناراض۔ پھر ایک آدمی کھڑا ہوا، غصے اور نفرت سے بھرا ہوا، وہ عربی کی اس چلایا، عبارت کا مطلب تھا کہ کیا ناش ہو تیرا، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ۔ یہ آدمی اور کوئی نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب تھا۔ اس کے بددعا آسمان سے ٹکرا کر اس پر ہی آ گئی۔ اس کی نصیب کی پنوں پہ جہنم کا عذاب ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا، لیکن اللہ نے ابھی اپنے نبی کو یہ بات نہیں بتائی۔ اسکالر کہتے ہیں اگر اس صورت اس وقت نازل ہو جاتی تو مکہ کے لوگ کہتے، اس پر کیسے بھروسہ کریں؟
वो अपनों की बुराई करता है। असल में मक्का के उस दौर में चाचा का दर्जा बाप के बराबर होता है, स्पेशल तब जब सगे वालिद का इंतकाल हुआ हो। वक्त गुजरता रहा, अल्लाह के नबी घूम घूम कर जगह जगह एक अल्लाह की इबादत करने के लिए मैसेज पहुंचाते रहे, लेकिन अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाता रहा। अब ये कौन सी नई शायरी ले आया है? यहाँ तक वो बाजार की सारी लड़कों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा देता और उनसे कहता, इनको पत्थर मारो। लेकिन इसकी जुल्म यही नहीं रुका। इसकी बीवी यानी रसूल अल्लाह की चाची उम्मे ज़मीर, जो कमाल की खूबसूरत औरत थी, नए नए तरीकों से नबी को परेशान करती। आप सब तो मक्का के बड़े सरदार हैं, फिर अहमद का बॉयकॉट क्यों नहीं करते? सही कहा, बॉयकॉट करो उसका। हाँ, बॉयकॉट करो उसका। सही कहा। हाँ, बॉयकॉट करो उसका। लेकिन हद तो तब हो गए जब इसने अपने दोनों बेटों को ये हुक्म दिया कि वो अपनी बीवियों को तलाक दे। तुम्हारा चेहरा भी मुझ पर हराम है अगर तुमने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दिया। बाबा, हम आज ही उन्हें दिन शाम ढल गए और शाम रातों में ढल गए, लेकिन अबू लहब के जुल्म में कोई कमी नहीं आई। अरे मक्का वालों, मेरे भतीजा दीवाना हो गया है, दीवाना। इसकी बात मत सुनना। और जब इनकी जुल्म की इंतहा हद से पार हो गई, तब अल्लाह सुब्हानहू तआला इन नबुवत के 10वें साल में सूरह लहब को नाजिल की। अबू हादी, हमें वो सूरह तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालत। आइए अब इस सूरत को सिनेमैटिक तरीके से समझते हैं। पहली आयत में अल्लाह ने कहा, टूट गया दोनों हाथ अबू लहब की और बर्बाद हो गया। अब यहाँ पर दो बातें हैं जो नोट करने वाली है। पहली बात तो ये है कि जो पूरी आयत है, ये आयत असल में पास्ट टेंस में बात कर रही है, यानी ऐसा ही नहीं कि अबू लहब के हाथ टूटेंगे। असल में उसके हाथ टूट चुके हैं। जिस लम्हे नबी पाक की शान में गुस्तागी की, उसी लम्हे उसकी हाथ टूट गई। तो ये काम 100% हो चुका है, उसके हाथ टूट चुका है। लेकिन अबू लहब फिर भी बाज ना आया। जब ये सूरत नाजिल हुई तब वो लोगों को कहता, वो कहता है मेरे हाथ टूट गए। कहाँ टूटे मेरे हाथ? सही सलामत। हम जंग बदर के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कितनी बुरी तरह से मारा और किस तरह से आया, बिल्कुल सच्ची साबित होगी। अब यहाँ पे दूसरी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात, कि हाथों की ही क्यों बात हो रही है। ये क्यों कहे जा रहा है हाथ टूट गए हैं? ये क्यों नहीं कहे जा रहा सर टूट गए, पैर टूट गए? क्यों नहीं कहे जा रहा? मैं कहता हूँ ना, अब ये सीन देखिए। इस सीन में आप नोटिस किया होगा कि कैसे एक सिपाही फाइटर ने अपने हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में खुद को बचाने के लिए एक ढाल है। तो किसी इंसान का अगर दोनों हाथ टूट जाए तो क्या होगा? ना तो वो बर कर सकेगा और न ही अपना बचाव कर सकेगा। तो फिर एंड दी एंड आप बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे और अगला हमला फिर आप ही के ऊपर होगा। बिल्कुल हम इसी तरह अबू लहब के जिंदगी में देखते हैं। उसके माल, उसके बेटे, उसके तल्लुकात, उसके पावर, सबके सब बर्बाद हो गए। कोई भी उसके काम नहीं आया। और हम आगे जाके देखते हैं, जब वो मारा तो इतनी बुरी तरीके से मारा, इतनी बुरी तरीके से मारा कि कोई उसे छूने वाला नहीं था, कोई दफनाने वाला नहीं था। कई दिनों से उसकी लाश सड़कों पर सड़ती रही। लोग परेशान हो गए, यहाँ तक कि उसके लड़के वो उसको छूने से, अपने घर में रखने से मना कर दिया। अरे अबू लहब के बेटो, अपने बाप की लाश तो ठिकाने लगाओ, बदबू से लोग। अब आता है आयत नंबर 2 पर। अबी लहब व तब नहीं उसका कोई माल काम आया, नहीं उसका औलाद काम आई। असल में ये आयत जवाब है उस बात का जो अबू लहब अक्सर लोगों से करता था। अगर वो सच्चा है, दे दूंगा मालो दौलत अल्लाह को,
और बचा लूंगा खुद को जहन्नम। अब यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि ये जो कसब का लफ्ज है इसका मतलब है कमाई की। कभी कभी लोगों के पास बहुत पैसा होते हैं, बाबा दादा ने कमा के छोड़ा हुआ होता है, पर ये कसब का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है अपनी कमाई के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें वो कहता है कि इंसान के सबसे बेहतर कमाई उसकी औलाद है, और जिस तरह से हम देखते हैं उसकी औलाद उसके काम नहीं आई। अगली आयत में बढ़ते हैं, आयत नंबर 3 में कि अबू लहब जहन्नम की आग में जलाया जाएगा जो भड़क रही होगी सोली वाली आग से। अब हम बढ़ते हैं चौथे आयत की तरफ। और इस आयत का मतलब है कि उसकी बीबी अपने सर पर ईंधन उठाएगी। ईंधन क्या कि वो लकड़ी ढूंढ रही होगी जहन्नम के अंदर। इसका काम है जलना और साथ में इसको जाना है, और जाकर ये लकड़ियाँ लेकर आएगी और उस आग के अंदर लकड़ियाँ डालेगी। तो जब हम आग में लकड़ियाँ डालते हैं तो क्या होता है, आग और तेज होती है, तो अपने आग वो खुद जलाएगी। लेकिन यहाँ मजे की बात ये है कि अल्लाह ताला ये भी कह सकते थे कि वो जहन्नम में जलती रहेगी, जलती रहेगी। यही क्यों कहा कि वो लकड़ियाँ लेकर आएगी। देखिए यहाँ समझने की बात ये है कि वो अपनी जिंदगी में क्या करती थी, तो इस दुनिया में अपने शौहर की नफरत फ्यूल करती थी, उस आग को बढ़ाने में उसका साथ देती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने आखिरात में उसका ये अज़ब रखा है कि जाओ जाके लकड़ियाँ लेकर आओ, धो अपने सर पे और अपनी आग को खुद भड़को। अब यहाँ एक ज़रूरी बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जब भी आप नमाज सूरत रिसाइट करते हैं, ऐसा नहीं कि वम्रतु हम्मालतल हतब, ना। हम्मतुल एक पावरफुल लफ्ज़ है, बहुत ही उसके अंदर असर है, वेट है। तो जब भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही कोस पर जोर देना है। कमरतुहु हम्मातल अतब। आयत नंबर 5 की तरफ चलते हैं। और इसकी गले में मूछ पे रस्सी होगी, यानी नारियल की छाल की रस्सी। यहाँ पर जिदिया जो लफ्ज है, ये लफ्ज का इस्तेमाल होता है खूबसूरत गर्दन के लिए, ऐसी गर्दन जो जेवर लड़ी हुई हो। कमाल की बात ये है कि रस्सी का जिक्र क्यों और गर्दन का जिक्र क्यों है। इसके पीछे की बात ये है कि उम्मे जमील खूबसूरत सपने में गले में हार पहना करती थी। वो मक्का वालों से कहती थी, अपनी नौकरों से कहती थी, मेरे गले का ये हार मैं उसको दूंगी जो मोहम्मद के खिलाफ खड़ा होगा, मेरा साथ देगा। आम लोगों से कहती थी, और इसी वजह से यहाँ मेंशन किया गया है। उसके गले में मूछ की रस्सी होगी, बाल वाली रस्सी होगी, तकलीफ देने वाली रस्सी होगी उसकी उस गले में, जिसमें वो हर वक्त हार पहना करती थी। ये थी सूरह लहब की अंडरस्टैंडिंग। अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि आज हमारी ज़िंदगी में इसका क्या रेलिवेंस है, जो मैं समझाती हूँ उस हिसाब से बताऊँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि सूरत इसलिए नाजिल की गई कि वो जो अल्लाह के नबी का दुश्मन है वो अल्लाह का भी दुश्मन है। जिस स्पीड से वो बढ़ रहा था जुल्म करने के लिए, उससे कहीं गुना स्पीड से अल्लाह का अज़ाब अबू लहब की तरफ आ रहा था और आ चुका था, उससे खबर नहीं थी।